Let me begin from the para number last. So everyone just open your textbook. Everyone just open your textbook. 179. Page number, tell me the page number. Ans, tell me the page number. Ans, can you tell me the page number? 183. Okay. Okay. See, we have discussed about the protecting biodiversity, how we can protect our biodiversity. Okay, now how we can protect and how we can just save our biodiversity. We already have discussed. Okay, now all of you have got the point that how we can save the biodiversity, how we can protect the biodiversity. Everyone okay? Everyone got the point? In previous classes, we have discussed about that, how we can conserve, how we can save, how we can protect our biodiversity, the living beings which are present in our bio, in our earth, how we can save them. We can stop the XC2, it means we can stop the extinct. We can also allow the instinct. Instinct means in situ, okay now? It means आपका जो in situ है, just all of you see. Here it is there in your book that in C2 and one word is there XC2. Okay now. See, this mean that instinct. This mean only that instinct and this means extinct. Yes, instinct. Okay now. So see, I hope so you all are getting my voice. Everyone is getting my voice? Okay, see. Okay, see. Here in your book, in C2 and XC2 is there. Okay, now you don't have the instinct. Okay, now I think so you have instinct, but you don't have the instinct. Why? Because we are reading here laws. Okay, now we are reading here laws. We are knowing here about the laws, how we are losing. Okay, now that's why you have only instinct. Okay, now it means कि जो animals हो रहे हैं वो गायब होते जा रहे हैं, ठीक ना? तो वो मतलब हम लोग लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, मीन्स हम लोग जो एनिमल्स गायब होते जा रहे हैं उनके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक ना? दैट्स व्हाई यू हैव ओनली दिस type of word extinct, okay, in your book. Now see, you can protect your environment, you can protect your biodiversity by doing some activities. How you can protect your biodiversity? Just tell me some points one by one. Tell me some points. So all of you just mention like this. You can do and you cannot don't. ठीक है ना? You can do the activity and you cannot do the activity. So you can just protect. You have to do इन situ. ओके ना, यू हैव टू अलाउ द इन situ. इट मीन्स कि जो भी एनिमल्स होते हैं जो आपकी दूसरी कंट्री से दूसरे स्टेट से आपके इंडिया में आते हैं वो चीजों को आप अलाउ रखोगे तभी आपके बायोडाइवर्सिटी में जो एनिमल्स प्रेजेंट नहीं है या फिर जो एनिमल्स गायब होते जा रहे हैं या फिर न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म न्यू टाइप के आपके एनिमल्स या प्लांट्स है वो आपके इनसाइड इंडिया क्या हो सकते हैं आ सकते हैं. तो यू हैव टू अलाउ दिस कि आपके इन situ क्या होने चाहिए मतलब कि आपके जो बाहर के एनिमल्स हैं बाहर के स्टेट के अदर कंट्री के जो एनिमल्स है वो आपके इंडिया में आने चाहिए जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट. ओके ना, वी हैव टू नॉट डू, क्या हमें नहीं करना चाहिए? तो वी हैव टू स्टॉप XC2. इट मीन्स की इंस्टिक्टिविटी जो आपकी है इंस्टिक्ट है उसको आपको क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए, ठीक ना? मतलब कि जो आपके एनिमल्स आपके इंडिया आपके स्टेट से जो एनिमल्स को आप दूसरी कंट्रीज में दूसरे आप मतलब स्टेट में भेज रहे हो वो चीजों स्टॉप कर देनी चाहिए. वो चीजों क्या करना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए ताकि क्या हो जाए हमारा जो एनवायरनमेंट है जो भी उसमें आपके ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं एज क्या कहते हैं प्लांट जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्लांट्स या फिर एनिमल्स वो चीजों को आपको एक्स करना बंद कर देना. एक्स मतलब क्या? जो चीजें जा रही है या फिर चली गई है, ठीक है, उसको हम एक्स कहते हैं ना. आई हैव गिवन द ट्रिक्स कि क्या होता है उसका, ठीक ना? सो आई थिंक सो ऑल आर रिमेम्बरिंग दैट ट्रिक्स. ओके ना, आपको पता होगी ट्रिक्स जो मैंने बताया था आप लोगों को. ओके जस्ट वेट, लेट मी चेक, वेट लेट मी चेक. You cannot see this. Now it is okay? Now it is okay? Is it? No. Okay, wait. Let me close the door. Wait. I think so light reflection is there, that's why. Light reflection is there, that's why. Okay, now okay? Now you all must see?
And Mahenu, you won't able to see. Just wait. Then wait. Let me do something for you. Wait. हाँ, wait, wait, wait. Okay, here light problem is there, na? I think so. Now you can see. Now you all can see. Okay. See. Let me clear my camera also. Yes, I think so. It is okay now. Okay. See. तो आपको क्या करना होगा, फाइनली आपको इन सी टू अलाउ करना होगा और एक्स सी टू क्या करना होगा, आपको डोंट करना होगा, मतलब डिस अलाउ करना होगा, ठीक ना। ऐसे आप क्या कर सकते हो, एनिमल्स को आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक ना। ना यू हैव टू ऑल्सो कीप द एनिमल्स विच आर जस्ट गोइंग डे बाई डे लॉस, जो भी आपके एनिमल्स है वो लॉस हो रहे हैं, ठीक ना, डे बाई डे क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो उनको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी एज अ हैबिटेट, उनकी जो हैबिटेट है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट आप दे सकते हो, ठीक ना, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक ना, यू कैन प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट, ओके ना। एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट कीप ऑल द एनिमल्स, कीप दोज एनिमल्स, those animals or plants which goes ऑफ, ठीक है ना, जो भी आपके एनिमल्स होते जा रहे हैं डे बाय डे वो ऑफ होते जा रहे हैं, अगर तो उन एनिमल्स को आप क्या कर सकते हो, नेचुरल हैबिटेट उनको प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें कि अब एग्जांपल बता देती हूँ मैं कि जू है आपका, पार्क है आपका, तो आप जू और पार्क में आप क्या कर सकते हो, उनको रख सकते हो, ठीक है ना। दिस कैन हेल्प दैट दैट एनिमल्स शुड नॉट डाई ऑफ, ठीक ना, वो लोग क्या हो जाएंगे, फिर वो मरेंगे नहीं, अगर आप उनको वैसा हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट दे रहे हो, अगर आप उनको मतलब वैसे पार्क या जू में सर्वाइव करने के लिए मतलब उनका क्लाइमेट दे रहे हो। हाँ, आपका क्या बेसिकली क्या होता है, या जो एनिमल्स होते हैं वो क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट पे उनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि मतलब क्या खाना खा रहे हैं, ठीक ना, कहाँ उसका हैबिटेट, इन सारी चीज़ों पे ये एनिमल्स डिपेंड होते हैं, तो वैसे आपको क्या करना होगा, हैबिटेट उनको प्रोवाइड करना हो, जिससे एनिमल क्या हो सकते हैं, आपके एनिमल्स क्या हो सकते हैं, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकते हैं ना। वन थिंग मोर, कि जो आपके एनिमल्स होते हैं, आपको पता है कि जो हाइबरनेशन, आपकी क्लास में पढ़े होगे, आप लोग क्लास 7 में पढ़े होगे, जो हाइबरनेशन और एक्टिवेशन क्या होता है, तो द वर्ड जो आपका हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन है, और जो आपका वर्ड है एस्टिवेशन, ओके ना, दिस बोथ वर्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर वंस, बट समथिंग डिफरेंट इज दैट कि ये जो होता है स्लीप ड्यूरिंग समर, ये जो एनिमल्स होते हैं ड्यूरिंग समर में सोते हैं, ठीक है, स्लीप ड्यूरिंग समर। जो एस्टिवेशन होते हैं ये आपके स्लीप ड्यूरिंग विंटर होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एक्चुअली वन रीजन इज मोर दैट कि हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होते हैं, कुछ एनिमल अपने प्लेस, ओरिजिनल प्लेस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक ना, छोड़ के दूसरे प्लेसेस पे हैबिटेट करने लगते हैं अपना, क्यों, क्योंकि उनके फूड, लैक ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ शेल्टर, ठीक है, इस वजह से। तो आपको क्या करना होगा कि ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ज्यादा सोते हैं, समर में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सोते हैं, लेजी एनिमल्स जो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा समर में सोते हैं, उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है ना। और जो एनिमल्स आपके विंटर टाइम में बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सोते हैं, उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है ना। आई होप सो कि जो आपके एनिमल्स समर टाइम में बहुत ज्यादा सोते हैं तो उनको हम कहते हैं हाइबरनेशन, और जो एनिमल्स आपके होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड आपको सोते हैं विंटर में, तो उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है ना। तो जब ये ज्यादा सोएंगे तो खाना कौन बनाएगा, वी हैव अ मदर, वी हैव अ सिस्टर, जो हमारे लिए खाना बना देती है, ठीक ना। व्हेन वी आर जस्ट सीइंग अबाउट आवर सेल्फ, तो हमारी मम्मी है, हमारी जो क्या होती है सिस्टर होती है, वो खाना बना देती है हमारे लिए। बट दिस एनिमल्स हैवन फैमिली, उनके पास तो फैमिली नहीं है, तो ये फैमिली अगर नहीं है तो ये खुद का खाना खुद ही खा, मतलब जो भी जहाँ से ऑर्गेनाइज करके खाना होगा, ठीक है। जो भी एनिमल्स होते हैं जब ये सोएंगे तो भाई खाना कहाँ से खाएंगे, जब खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है, इनको सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या करेंगे, हम लोग सर्व करेंगे, वी कैन फीड, वी कैन सर्व, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सर्व करेंगे, आपकी मतलब इनको फीडिंग कराएंगे, ठीक है ना। खाना क्या करेंगे, उनको हम सर्व करेंगे, खाना, हैबिटेट, जो भी आपकी चीजें मतलब जो आपको लगता है कि इस पे एनिमल डिपेंड है, वो सारी चीजें आप क्या करोगे, इनको आप प्रोवाइड करोगे, ठीक ना, आप इनको सर्व करोगे, देन वी कैन सेव द एनिमल्स, ओके ना। आई होप सो यू ऑल आर गेटिंग, I hope so. Up to here, we all have
राइट नाउ? अभी तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, ये के ओके ओके। सी हाउ वी आर डूइंग द कंजर्वेशन इन इंडिया। ऑब्वियसली हमारे जो इंडिया है वो सबसे मतलब क्या है, अनोखा है, सबसे डिफरेंट है, यूनिक है। तो आपका जो इंडिया में होता है वहाँ कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, तो वहाँ पे कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। तो वी हैव अ यूनेस्को, वी हैव अ वेरी, मतलब हम लोग के पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, टीम है हमारे पास, जैसे आपको बताया गया था ना, हमारे पास क्या क्या है, यूनेस्को है, बहुत सारे आपकी वाइल्ड लाइफ है, ठीक ना। इट मीन नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, सेंचुरीज क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है। दिस ऑल आर द फील्ड वेयर द ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स आर हैबिटेट देती है ना, उनकी जो सिचुएशन, मतलब जो भी आपके हैबिटेट होता है वो सारे आपके नेशनल नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होता है, उसमें एनिमल्स और प्लांट्स को रखा जाता है, जो कि क्या करते हैं, एक्टिवेशन वाले एनिमल्स है, हाइबरनेशन वाले एनिमल्स है। इन सारे एनिमल्स को हम इस वाले सेंचुरीज में आपके रखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है कि उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना, इनको हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना, ताकि ये लोग लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सके, ठीक ना। फिर इनका फीडिंग कराया जाता है, इनका ब्रीडिंग कराया जाता है, ठीक ना। ब्रीडिंग कराने की वजह से उनकी क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक ना। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फिर क्या होगा, न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होंगे आपके प्रेजेंट रहेंगे, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो सबकी लाइफ स्पैन क्या होती है, फिक्स होती है। तो दैट्स वाई यू मे हर्ड अबाउट द रिप्रोडक्शन की, जो रिप्रोडक्शन हम लोग कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं एनिमल्स के, जो भी प्लांट्स के, क्यों कराते हैं, क्योंकि जो आपकी लाइफ स्पैन फिक्स होने के बाद भी कुछ जो उनके अलग अलग जो उनके जो मतलब की प्रोजनी है, जो उनकी प्रोजनी ऑफस्प्रिंग जो है, उन लोग के बच्चे हैं, वो क्या हो सके, वो मतलब आपके टाइम टू टाइम वो क्या हो सके, मतलब होते जाए, ताकि हमारे जो अर्थ का जो सिस्टम है वो क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक ना। इस वजह से तो आपको पता है कि यहाँ पे फीडिंग भी होती है, ब्रीडिंग भी होती है, और आपका सर्विंग भी होती है, फूड वाटर हैबिटेट एवरीथिंग का आपका सर्विंग भी होता है। सी ना सी वेटलैंड, मैंग्रोव्स एंड कोरल फील्ड्स, आपको पता है जो हमारे पार्क होता है, गार्डन्स होता है, वहाँ पे भी आप एनिमल्स को देख सकते हो, ठीक ना। नेचुरल सेंचुरीज, आपके नेशनल पार्क, ये सारी चीजें आपके हैं जहाँ पे एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक ना, एनिमल्स को वहाँ पे रख सकते हैं ना। उसी आप लोगों ने बहुत सारे पार्क के नाम सुने होंगे। नेशनल काजीरंगा पार्क जो है, जो कि आपके चेन्नई में मतलब सिचुएटेड है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वेराइटीज ऑफ एनिमल्स यू कैन फाउंड देयर, ठीक है, वेराइटीज ऑफ एनिमल आप लोग देख सकते हो, ऐसे एनिमल्स जो कि आप अपनी विजिबल आइज से, यू कैन नॉट सी बाय योर नेक्ड आइज, तो वो एनिमल्स भी आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं, ठीक ना। यू मे हर्ड अबाउट द चिड़ियाघर, चिड़ियाघर क्या आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पे आपका सिर्फ चिड़िया ही नहीं रहती, वहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट ओवर देयर। सी वन थिंग मोर, कि जो भी आपने एनिमल्स आपके आसपास, आपके मतलब कि आपके सराउंडिंग में आप लोग नहीं देख पाओगे, ठीक ना। इट में भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जो भी डेंजरस एनिमल्स हैं, जो भी डोमेस्टिकल एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो एनिमल्स हम अपनी नेक्ड आई से अपने सराउंडिंग में नहीं देख सकते हैं, वो सारे एनिमल्स भी आपके सेंचुरीज में, आपके नेशनल पार्क में, चिड़ियाघर में, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट, ठीक ना। वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। सी जो क्रोकोडाइल होता है वो मद्रास में, मद्रास की कोई पार्क है, ठीक ना, स्पेशल पार्क जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैसा उनका हैबिटेट होता है, आपको पता है कि जो हमारा क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल को क्या चाहिए, हमको वाटर चाहिए, बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक ना। तो क्या होता है कि जो हम क्रोकोडाइल का क्या करते हैं, साइड साइड में स्टोन लगा देते हैं, और उसमें वाटर फिल कर देते हैं, और उसमें मगरमच्छ को रखते हैं, ठीक ना। आप लोग ने एक कैसा भी होता है, एक्चुअली जू होता है, पार्क होता है, बहुत सारे होता है, उसमें आप लोग जाओगे ना, देखोगे कि जो हमारा क्रोकोडाइल होता है ना, उसका भी एक हैबिटेट वहाँ बनाया जाता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हम लोग क्रोकोडाइल वहाँ पे देख सकते हो, जू में, सेंचुरीज में, पार्क में, नेशनल पार्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोकोडाइल्स के प्रोजनी, क्रोकोडाइल्स मम्मी पापा उनके सभी सब देख सकते हैं, ठीक है, मम्मी उनके पापा, जो भी उनके प्रोजनी होते हैं, जो भी उनके बच्चे होते हैं, हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोकोडाइल्स को देख सकते हैं एक जू में, ठीक ना। तो ऑब्वियसली जो हम लोग क्रोकोडाइल कहाँ देखते हैं, रिवर्स में देखते होगे आप लोग, तो आप लोग के सराउंडिंग में, आई डोंट थिंक सो कि आपके सराउंडिंग में आपको ऐसे क्रोकोडाइल देखे होंगे, बट अगर आपको क्रोकोडाइल देखना है या फिर एनी टाइप ऑफ एनिमल विच आर नॉट विजिबल हियर, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो लोग वो चीजें विच आर नॉट विजिबल हियर यू कैन सी देयर, ओके ना, आप लोग वहां जाके देख सकते हो ना। सी what do you mean by people participation? हाँ, it is participation, yes, people's participation. तो it means जो आपके people participation क्या कर सकते हैं, मतलब लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी बताया गया होगा कि फॉर द बेनिफिशियल यूज हम लोग क्या करते थे, अपने प्लांट्स को यूज करते, प्लांट्स को हम लोग यूज कर लेते, ठीक है, एनिमल प्लांट्स को, फॉरेस्ट को यूज कर लेते हम लोग। तो जहाँ पे अगर हम, क्योंकि ये भी क्या है, बेसिक नीड है, जैसे I think so your class timing is off. Just wait. ओके, तो सी जहाँ पे हम लोग एक प्लांट को क्या कर रहे हैं, एक प्लांट को हम लोग कट करें, क्योंकि ये भी जरूरी है भाई, हमें फर्नीचर चाहिए, हमें बेसिक नीड के लिए हमें फर्नीचर चाहिए, क्योंकि हमें बेंच बनाना है,
व्हाइट बोर्ड बनाना है, ब्लैक बोर्ड बनाना है, ग्रीन बोर्ड बनाना है, तो इन सब चीज़ के लिए क्या चाहिए हमको, फर्नीचर्स बनाना है, आपके विंडोज बनाना है, फिर विंडोज के जो भी मतलब होते हैं खिड़की होते हैं उसको वो बनाना है, डोर्स बनाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो चाहिए हमको वुड तो चाहिए। तो वुड ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पेड़ कट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ पे एक प्लांट अगर आप कट कर रहे हो तो वहीं पे आप 2 या 3 प्लांट आप क्या कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो, ठीक ना। तो ऐसे जो लोग हैं तो इसमें इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे कैन डू द मोर प्लांटिंग, हो क्या, वो लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, देन दे कैन शेव द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो दे कैन सेव द प्लांट्स, ओके ना। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, सी ये सारी चीजें अगर इन्वॉल्व होती है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सेव कर सकते हैं, ठीक ना। ना सी तो चिपकू आंदोलन, ठीक है, चिपकू मूवमेंट जो है, चिपकू मूवमेंट बोलते हैं, आंदोलन, आंदोलन का मीन्स होता है चिपकू मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, सी। तो जो आपका चिपकू मूवमेंट हुआ था तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था, जो आपका चिपकू मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि लोग बिलीव करते थे कि हाँ ठीक है पेड़ काटना जरूरी है, क्योंकि हमें जो भी बेसिक नीड्स के लिए फर्नीचर चाहिए, फिर जो भी चीजें चाहिए, पेड़ तो जरूरी है उसके लिए। बट वी कैन डू द थिंग कि आप लोग क्या कर सकते हो कि जो एक प्लांट आप लोग यूज कर रहे हो तो उसकी जगह पे आप लोग 2 या 3 प्लांट क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है ना। वन विलेज इज देयर, गोपेश्वर, गोपेश्वर नाम का एक विलेज है जो कि आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में आपका विलेज का नाम है गोपेश्वर, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक ना। तो एक्चुअली यहाँ की स्टोरी है कि यहाँ पे पहले 1973 में आपका चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। तो फिर 1973 में आपका चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब चिपकू मूवमेंट आपका आंदोलन स्टार्ट हुआ था। हियर द विलेज नेम इज गोपेश्वर, ओके ना, विच इज प्रेजेंट इन द उत्तराखंड, आपके आपके उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये एक्चुअली में फर्स्ट टाइम हुआ था। तो यहाँ पे हुआ क्या था, तो आपके जो भी मतलब यहाँ पे जो भी लोग थे वहाँ पे ना, जैसे राजा वजह थे या फिर जो भी लोग थे वहाँ पे, तो करते क्या था, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर मतलब पता होगा आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते ना कि इतने फॉरेस्ट को कट करना है, ठीक ना। तो वो लोग क्या करते थे, जो उनके मतलब फॉलोअर्स थे वो उनको कट कर देते थे, ठीक ना। कट करने के बाद आपकी बहुत सारे अमाउंट ऑफ ट्री मतलब डिस्ट्रॉय होने लगे, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है आपका, ये आपका कॉज कर सकता है क्या, डिफोरेस्टेशन भी हो सकता है, ठीक ना। तो इस वजह से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ये पेड़ को मतलब उनके अंदर जो भी मतलब किसी ने मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया उन्हें, ठीक ना। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी आपके पेड़ थे वहाँ पे फॉरेस्ट थे, ठीक ना, उनको क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने हक करना शुरू कर दिया, ठीक ना, कडलिंग करना शुरू कर दिया, ठीक ना। कडलिंग का मीन्स पता है हगिंग, ठीक ना, तो हगिंग करना शुरू कर दिया, ठीक ना। वो जो भी पेड़ को क्या करते थे, जो भी पेड़ थे वहाँ पे, तो उनके फॉलोअर्स कट करने आ रहे थे, जो भी सर्वेंट्स थे कट करने आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर वाले थे जो कॉन्ट्रैक्ट लिए थे कि हाँ पेड़ काटने हैं, काटने आते थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उसको हक करना, पेड़ को हक करना शुरू कर देते थे, ताकि नहीं हम नहीं काटे देंगे, ठीक ना, हम पेड़ को नहीं काटे देंगे, क्योंकि हमारी पेड़ी लाइफ है, हमारा विलेज है, हमारा पेड़ मतलब क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे पेड़ नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे, आप बिल्डिंग बना दोगे, होटल बना दोगे, स्कूल बना दोगे, और फिर हम क्या मतलब हम ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे, ठीक ना। फिर हमारे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सब इशू करके वो लोग क्या करने लगे, पेड़ को सेव करने की कोशिश करने लगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका विलेज है गोपेश्वर विलेज जो है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम इन 1973 दे हैव स्टार्टेड द चिपकू मूवमेंट, ओके ना। इट मीन्स की चिपकू आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। कि ये लोग क्या कर रहे थे कि जो भी पेड़ काटने आता था तो वो पेड़ के सामने जाके वो लोग हक करने लेते थे, नहीं हम पेड़ नहीं काटने देंगे, ठीक ना। तो तो ये ऐसा ऐसा हुआ था एक्चुअली में। तो आपका जो कौन थी, आपकी एक लेडी है गौरी देवी, ठीक ना, जो कि 50 साल की थी, कितने साल की थी, गौरी देवी नाम की एक लेडीज थी, जिसका जो उनकी एज थी 50 ईयर थी, ठीक ना। उन्होंने मतलब कि क्या कहा, कॉन्ट्रैक्टर से फाइटिंग किया और कहा कि नहीं 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 आप लोग पेड़ नहीं काटो, नहीं तो हम आप लोग को अलाउ नहीं करेंगे अपने विलेज में आने के लिए, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो वहाँ के लोग थे वहाँ पे इंस्पायर हो, ठीक ना। सोचो यार 50 ईयर की लेडी है, इतनी मतलब ओल्ड लेडी है, और ये क्या कर रही है, ये मतलब कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, वी आर द यंग, वी आर द यूथ पर्सन, सो वी कैन ऑल्सो डू, वी कैन ऑल्सो हेल्प, ठीक ना। वो लोग क्या करें कि हाँ हम भी हेल्प कर सकते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक ना। तो दे हैव ऑल्सो फॉलोड हर, ठीक ना। ये लोग भी क्या करने लगे, फॉलो करने लगे उसको पीछे पीछे, ठीक ना। वो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वैष्णवी की, तो हियर गौरी देवी इज देयर, ठीक ना, आपकी 2 स्टोरी है। तो हाँ एक्चुअली 2 स्टोरी है, 2 लेडीज भी है, ठीक है। तो इसमें गौरी देवी ने क्या किया, 50 ईयर की लेडीज थी, जिन्होंने क्या कहा कि हाँ हम मतलब कि अपने पेड़ को काटने नहीं देंगे, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको अपने विलेज में भी एंटर करने नहीं देंगे। ऑल ओवर द जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है लोग थे, जैसे आपके यूथ हो गए, जो भी आपके मतलब कि जेंट्स लेडीज जो भी हो गए, मेन्स वुमेन्स जो भी हो गए, बच्चे हो गए, तो सोचे कि हाँ ये इतनी ईयर मतलब 50 ईयर की हो गई है, फिर भी जब कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक ना। वाई, बिकॉज वी नीड द इंस्पायरेशन, वी नीड द मोटिवेशन, ठीक ना। हमें क्या चाहिए होता है, इंस्पायरेशन चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक ना। अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा बहुत कमजोर होता है, वीक होता है, डल होता है पढ़ने में, और वो अगर क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, मार्क्स अच्छे लेके आ रहा है, आप लोग क्या करोगे, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। अरे जब वो इतना वीक है, इतना डल था, इतना अच्छा मार्क्स कैसे लेके आया, उसका मैम ने क्या किया है, उसको मार्क्स बढ़ा दिया, ठीक ना। आप लोग ये सोचोगे, आप लोग तो ये नहीं सोचोगे इंस्पायर हो जाओगे, ये लेके आ रहा है तो हम लोग भी लेके आ रहे हैं, आप लोग क्या सोचोगे,
हाँ मिस इसको बहुत ज्यादा मानती थी ना, इसलिए कम मार्क्स देके इसको बढ़ा दूंगी, फिर इसको मतलब पास कर दूंगी। बट ऐसा नहीं है, आप लोग को इंस्पिरेशन मोटिवेशन को करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए ना, सॉरी उसको क्या करना चाहिए, अब्जॉर्व करना चाहिए ना, कि हाँ कोई ऐसा अगर है, अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज को हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी आदत हम सीखते नहीं है और बुरी आदतें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक ना। तो यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फोकस एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर माइंड, ठीक ना, कि हम लोग क्या मतलब दिमाग में हमारे क्या है, वही चीज को हम फोकस करते हैं, वही चीज को हम फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस लेडीज को फॉलो किया और देन द मूवमेंट वाज स्टार्टेड, ठीक ना, वो मूवमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया वहां पे, ठीक ना। सी ये जो आपका एक्टिविटी है ये कहाँ कहाँ हुआ है, तो हिमालय रीजन में भी हुआ है, वहाँ के जो लीडर्स थे सुंदरलाल बगुगुना, ठीक है ना, चांदी प्रसाद भाट, दिस ऑल आर ऑल्सो स्टार्टेड। जब क्या होता है कि देखिए हमारी एक्चुअली हमारी जो कंट्री है, ठीक ना, हमारी कंट्री है, अदर कंट्री है, तो वहाँ पे कोई कंट्री में अगर फ्रीडम वाला, फ्रीडम के लिए अगर मतलब कोई क्या कर रहा है, लड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है, दूसरी कंट्री में फॉलो करने लगते हैं ना। तो वैसे ही क्या हुआ था, जब यहाँ पे चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले जो लोग हैं ना, उसको उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे कि जो कोल्डर रीजन के जो लोग थे, जैसे ऑलरेडी नाम यहाँ पे दिया गया है आपके, ठीक ना, कि जो सुंदरलाल बगुगुना थे एंड चांदी प्रसाद थे, इन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया, उन्होंने भी इस मूवमेंट को क्या कर दिया, कहा कि हाँ इस मूवमेंट को हम भी करेंगे एंड वी विल ऑल्सो सेव अवर कंट्री, वी विल ऑल्सो सेव अवर विलेज, ओके ना। तो उन्होंने कर दिया। लॉन्ग आफ्टर मतलब लॉन्ग टाइम के बाद क्या हुआ, जो आपका चिपकू मूवमेंट है ना, वो सिमिलरली हर जगह, ठीक है, हर जगह क्या होने लगा, वो होने लगा, ठीक है ना, हर जगह लोग फॉलो करने लगे कि हाँ अरे यार पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है और पेड़ के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। दे हैव ऑल स्टार्टेड द चिपकू मूवमेंट, ओके ना। तो आपके 1973 में फर्स्ट टाइम हुआ था और उस चीजों को लोग फॉलो करने लगे और हर जगह आपके होने लगा। आपके जोधपुर, जो आप जोधपुर जानते हो ना, दिस आर आई थिंक सो प्रेजेंट इन द राजस्थान, ठीक है, जोधपुर जो है आपका, वहाँ पे 1731 में, ठीक है, पहले तो उन्होंने 1731 में उन्होंने चिपकू मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। वहाँ यस यस नितेश, व्हाट आर यू सेइंग नितेश, sorry I'm not getting your voice, what are you saying, what you are saying Nitesh, what are you saying, I'm not getting your voice। ओके सी देन जोधपुर, जोधपुर में आपका 1731 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो वहाँ के जो किंग था, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस स्टोरी इन योर क्लास, है ना, ऑलरेडी हमने क्लास में स्टोरी पढ़ लिया था, तो सो विल नॉट टेक मोर टाइम फॉर डिस्कशन अबाउट दिस स्टोरी। तो एक्चुअली जो वहाँ के राजा थे, ठीक ना, वहाँ के जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह, नाम क्या था, अभय सिंह था, ठीक ना, और क्लास 9, नहीं नहीं क्लास 9 के नहीं, ये जोधपुर के किंग थे जिनका नाम था अभय सिंह, ठीक ना। तो एक्चुअली में इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हाँ जो भी फॉरेस्ट आपके आसपास है ना, उनके जो भी आसपास फॉरेस्ट है, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे चाहिए इतने वुड चाहिए, इतने मतलब चाहिए। तो वो लोग अपने सर्वेंट को कहा कि हाँ यू गो एंड जस्ट टेक द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो कट द फॉरेस्ट एंड टेक द वुड फ्रॉम देयर, ओके ना। तो वहाँ के जो सर्वेंट्स थे, वो उनके जो फॉलोअर्स ऑब्वियसली दे विल ओनली फॉलो देयर किंग, थी ना, उन लोग अपने किंग को फॉलो करेंगे। तो वो लोग क्या करे, वो लोग जाके फॉरेस्ट में और वो लोग उधर से मतलब उड को लेके चले आए, ठीक ना, लेके चले आए। फिर क्या किया, ऐसे चलता रहा, तो फिर वहाँ के भी जो लोग थे इंस्पायर्ड थे कि हाँ यहाँ पे ऐसी स्टोरी हुई थी, तो हम भी यही चीज करेंगे, ठीक ना। तो वो लोग क्या किए, वहाँ की एक बिश्नोई थी, ठीक ना, वहाँ की एक जो लेडी थी जिसका नाम था बिश्नोई, ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ द बिश्नोई, कि वहाँ की जो स्टोरी थी बिश्नोई, तो वो भी मतलब कि एक लेडी थी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मतलब कि नहीं हम भी अपने ट्रीज को कट नहीं करने देंगे, अपने विलेज में आपको एंट्री नहीं करने देंगे अगर आप लोग ऐसा करोगे, ठीक ना। तो वहाँ पे आपकी जो अमृता देवी नाम की एक लेडी थी, ठीक ना, जो कि बिश्नोई वुमेन थी, बिश्नोई इज अ टाइटल, ठीक ना। तो बिश्नोई वुमेन थी वो, अमृता देवी नाम था उनका, उनकी दो लड़कियां भी थी, ठीक ना, उनकी डॉटर्स भी थी। उन्होंने क्या किया, अपने पेड़ को, जो भी पेड़ वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनकी विलेज में प्रेजेंट थे उनका पेड़, तो उस पेड़ को क्या कर लिया उन्होंने, हक कर लिया। उनकी वो जो अमृता देवी बिश्नोई थी वो और उनकी डॉटर्स जो थी, उन्होंने क्या कर लिया, पेड़ को हक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना, हक करना स्टार्ट कर दिया जब, तो क्या हुआ, वो लोग जो वहाँ के जो रूल्स मानने वाले जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप नहीं हटोगे तो मैं आपको भी उनके साथ क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, ठीक ना, उनके साथ कट कर दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ के सारे जो भी आपके फॉलोअर्स थे, जो भी आपके मतलब विलेज के फॉलोअर्स थे, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे सभी लोग, वो लोग भी क्या करने लगे, वो लोग सपोर्ट करने लगे, नहीं हम भी नहीं करने, हम भी नहीं करने, ठीक ना। बट वो लोग क्या, सोचो जितने भी आपके विलेज में जो भी लोग प्रेजेंट थे, वो भी अमृता देवी बिश्नोई को फॉलो करने लगे और कहे कि हम भी विलेज को कट करने नहीं देंगे, ठीक ना। तो क्या किया, सभी लोग ने हक करना शुरू कर दिया ट्री को, ठीक ना, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको, मतलब उसके अगेंस्ट, वो राजा के अगेंस्ट हो गए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करने लगे, वो लोग हक करना शुरू कर दिया ट्री को, ठीक ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि वो लोग जो फॉलोअर्स, वो तो राजा का भाई, राजा का जो भी ऑर्डर है वो तो फॉलो करेंगे उसका, ठीक ना, किंग के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो वो लोग क्या करने लगे, उस पेड़ के साथ साथ 363 पीपल को भी क्या कर दिया, कट कर दिया। 363 पीपल जो थे उनको भी क्या कर दिया उन्होंने, कट कर दिया उस पेड़ के साथ साथ। सोचो कितने ज्यादा वो मतलब थे, ठीक ना।
तो इस वजह से जो आपकी फिर क्या हुआ, जब ये बात सुना, किसने सुना, जब राजा ने सुना, किंग ने सुना कि हाँ ऐसा सब हुआ, एम्पायर जब सुना इस बात को, तो क्या था, उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया पूरे फॉरेस्ट को, क्या कर दिया, कहा कि अब जो ये चोरी हुई है 363 जो लोग डाई हुए हैं, तो अब ये हम पेड़ कभी कट नहीं करेंगे। और ही हैड प्रोवाइडेड दिस कि हम अब पेड़ कभी कट नहीं करेंगे, ठीक ना, वी विल ऑल्सो सेव अवर ट्रीज, ओके ना। तो ये स्टोरी आपकी बिश्नोई की थी। आई होप सो यू ऑल हैव गॉट द स्टोरी पॉइंट। हैव यू ऑल गॉट द स्टोरी पॉइंट? Okay, see. Yes, okay. Nitesh, are you getting the point? Are you all, have you all listened the story? Shreya, are you there? So just tell me the moral that what the moral we have got about this story. ठीक है, क्या moral हमको इस story से मिला, आप बताओ जरा श्रेया. Yes. Next.